हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। वेबकैम च प्रॉब्लम हो रही है। चलो हेलो स्टूडेंट्स, की हाल है सारिਆਂ ਦਾ। सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ फस्ट यूनिट है ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਯੂਨਿਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਸੋਫੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ in this lecture what we will learn, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ what are the dimensions, dimensional formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਨੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ all the physical quantities are divided into two categories। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਦੂਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਹ ਨੇ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ।
डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। वॉल्यूम भी डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया, L इंटू एल हो गया। सो हुण अपने को एक डिराइव्ड क्वांटिटी होर आउंदी है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी किद्दां लिखदे हुंदे आपां, मास बाय वॉल्यूम, किन्ना मास किन्ने वॉल्यूम च हैगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हुण आपां डेंसिटी कह दिंदे आ। जे पंजाबी च उहनूं कहना होवे तां वी यूज द वर्ड घनता, किन्नी घनता है, घग्गा घर वाला घनता। सो ये अपने कोल डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है डेंसिटी। सो इट मस्ट बी क्लीयर। ठीक है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होना चाहिए। हुण की है आ टेबल के बारे गल करन लगे आपां, कहंदा इन SI यूनिट्स दीज 7 क्वांटिटीज़ जिहड़ियां फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 तरह ਦੀਆਂ फंडामेंटल जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है, इन्हां 7 क्वांटिटीज़ है ना, these 7 quantities are expressed in fundamental units। इन्हां नूं fundamental units दे विच express कीता जांदा है, ते बाकी जिहड़ियां आ and all other physical quantities जिहड़ियां derived वालियां ने are expressed as the combinations of these fundamental units। ये गल आपां नूं पता है। ठीक है, so these 7 fundamental quantities are the 7 dimensions of physical world। असी इन्हां जिहड़ियां 7 क्वांटिटीज़ नूं 7 डायमेंशनस कह दिंदे हैं। फर्स्ट डायमेंशन मास, सेकंड डायमेंशन लेंथ, थर्ड डायमेंशन इज टाइम। ठीक है, सो बेसिकली जे डायमेंशन लाना होवे ते एलीमेंट तो ही बन गया ना इत्थे, बट इस अंडरस्टैंडिंग लई एलीमेंट ठीक है, लिखना तुसीं किते नहीं। ठीक है, these 7 fundamental quantities are the 7 dimensions of physical world। हुण अगलियां जिन्नियां भी क्वांटिटीज़ बन गियां वो अपने कोल जिहड़ियां आह वालियां क्वांटिटीज़ ने इन्हां दे मिक्सचर ते ही बननियां, इन्हां दे कंबीनेशन तो ही बननियां। हुण एक होर चीज़, इहनूं थोड़ा इधर करिए कैम नूं, ध्यान नाल देखो, क्वांटिटी डायमेंशन। सो क्वांटिटी नूं आपां किद्दां उहदी डायमेंशन नूं किद्दां लिख सकते हैं, मास दी डायमेंशन नूं असीं लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट दे विच M पा के, लेंथ दी डायमेंशन नूं लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट दे विच L पा के। दूजी ब्रैकेट नहीं पाउणी, सिंपल वाली वो नहीं पाउणी। डायमेंशन नूं रिप्रजेंट करन दे लई हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट चाहिदी आपां नूं। ठीक है, टाइम लई असीं T लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक टैंपरेचर नूं आपां लिखते हैं K दे नाल। ठीक है, वैसे आप टैंपरेचर T नाल लिखते होंगे ना, पर जिहड़ी इहदी डायमेंशन है वो K दे नाल लिखते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जिहड़ा SI यूनिट आ अपने कोल टैंपरेचर दा वो कैलविन हुंदा। ठीक है, सो आपां वो जिहड़ा यूनिट है, यूनिट तो ही डायमेंशन दा अखर चक्या हुआ है, कैलविन K हो गया। सो इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा आ इहनूं आपां A नाल लिख सकते हैं, अंपेयर तो आ गया, यूनिट तो अगेन। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिहड़ी आ वो कैंडेला तो आ गई, CD। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर उहनूं आपां मोल ही लिखते हैं। ये स्मॉल MOL लिख लेंदे, मैं कैपिटल लिख लिया, तो इत्थे आपां लिख सकते हैं। ठीक है, सो नैक्सट चलिए आपां। सो अगे मैं सॉल्व करने की कोशिश की सी थोड़ा जिहा। सो सब तो पहला तो आप डायमेंशनस की गल ही कर रहे हैं ना, कहना इन मैकेनिक्स, हले तक तो आप वो गल की टेबल की। इन मैकेनिक्स ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन MLT। जिहड़ी मैकेनिक्स असी पढ़नी आ मोशन नाल रिलेटेड चीज़ों की, उन्हां सारियां दे विच जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज है ने, ये सारियां मास, लेंथ एंड टाइम ते डिपेंड करदियां। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, ख्याल रखियो ML ते T, हले तक आप कोई चीज़ होर नहीं ली। ठीक है, मैकेनिक्स दे विच जो इलैक्ट्रोडायनेमिक्स आउंदी है उहदे च असीं करंट की गल करते हैं, चार्ज की गल करते हैं, उत्थे A वाली डायमेंशन भी विच आ जानी। सो इहनूं ध्यान नाल, इफ वी टेक फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ अपने कोल L होगी, ब्रेथ की भी डायमेंशन, लेंथ अपने को लेंथ है, ब्रेथ भी एक हिसाब की लेंथ ही है। सो इन्हां दी डायमेंशनस की होणगियां L ते L। सो आपां इन्हां दी डायमेंशनस लिख लिया, L इंटू L अपने को की बन गया L स्क्वायर। सो ये स्क्वायर नहीं है, ये आपां गिन लैंदे हुंदे आ भी जिद्दां L आ 1 + 2 हो गया, पावर जुड़ गई। हुण L की पावर 2 है,
ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब है भी ਜਿਹੜਾ एरिया आ रैक्टेंगल ਦਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 2 आ ਲੈਂਥ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ हैज़ 2 डायमेंशनस ऑफ लेंथ। ठीक है, मतलब जे लेंथ की एक डायमेंशन लैनी होवे आपां ऐ कह दिंदे आ एक लाइन है हाथ दे अलोंग लीनियर, सो 2 डायमेंशन 2 हुण प्लेन बन गया ना अपने कोल। जे 3 डायमेंशन करना होवे फिर अपने कोल की बन जांदा, वॉल्यूम बन आ जाना। ठीक है, आपां इत्थे की कहना है, इट मीनस एरिया हैज़ 2 डायमेंशनस ऑफ लेंथ since there is no dependence on mass and time। mass ते time ते कोई dependence नहीं, कल्ला L है इत्थे। so it has no dimensions in mass and time। mass ते time च कोई dimension ही नहीं होणगियां। जे dependence होगी फिर ही आपां उहदी dimension लिख सकांगे। so we can write dimension of area as rectangular bracket m दी पावर 0 L दी पावर 2 क्योंकि 2 आई है अपने कोल, T दी पावर 0। ठीक है, सो नेक्स्ट है अपने कोल ए आप डायमेंशन कितना लिखनी है किसी क्वांटिटी की देखते हैं। अगली एग्जांपल भी देखने हैं कोई। सो अगली एग्जांपल है अपने कोल जे आप स्पीड की गल करिए। ठीक है, स्पीड के केस दे विच की हुंदा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, L बाय T। सो डिस्टेंस की डायमेंशन की है L है, टाइम की डायमेंशन की है T है। सो स्पीड अपने को की होगी LT - 1। सो स्पीड हैज़ डायमेंशंस m0 L T - 1। सो वी से dimensions of the physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent that physical quantity। मतलब की बनया, सो मतलब अपने कोल की बनया कि लेंथ दी जेडी डायमेंशन आई सी L सी, एरिया दे विच अपने कोल की आया सी लेंथ दियां 2 डायमेंशनस। हुण स्पीड दे विच अपने कोल की आ गया लेंथ दी 1 पावर है ते टाइम दी T दी -1 पावर है। सो असी की कवांगे जिहड़ी स्पीड है, स्पीड दियां डायमेंशन की ने, स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, सो डायमेंशन नूं असी किद्दां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगेन पढ़ते हैं इहनूं। सो वी से दैट जिहड़ा डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे आप प्लूरल लिखे हुआ है ना, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। पावर की गल कर रहे हैं, एक L दी पावर 1 आप कहते डायमेंशन दी लेंथ दी 1 डायमेंशन है। द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी नूं रिप्रेजेंट करन दे लई जिहड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी दीयां किन्नियां पावरां ने, वो पावरां नूं आपां डायमेंशन कहने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल नाल गल क्लीयर हो गई होनी चाहिए। थोड़ा जिहा अगे तुरदे हैं, डायमेंशन कहने हैं। हुण जिहड़ा फार्मूला बनदा, जिहड़ी आपां चीज़ बनाई है ना, आ स्क्वायर ब्रैकेट दे विच डायमेंशनां लिखियां हरेक चीज़ दियां m दी पावर 0 L T दी पावर -1, इस चीज़ नूं असीं बोलदे हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, सो वी से दैट द एक्सप्रेशन विच शोज, द एक्सप्रेशन शोज which of the fundamental, grammatically इत्थे ऐ लिख लियो जो लिखन लगे notes विच, the expression that shows which of the fundamental quantities and with what power enter into the derived units of that physical quantity। भी किस कोई physical quantity है उनके जिहड़े derived unit आ, उन्हां derived units दे विच फंडामेंटल क्वांटिटी केड़ी ते उहदियां किन्नियां पावरां आ। जेड़ा फार्मूला आपां नूं ये चीज़ां दसे कि भी उस डिराइव्ड यूनिट दे विच फंडामेंटल क्वांटिटी केड़ी केड़ी है MLT है ना, ते उहदियां किन्नियां किन्नियां पावरां आ, तो उस एक्सप्रैशन नूं वी कॉल डायमेंशनल फार्मूला।
Again reading simply, the expression shows which of the fundamental quantities and with what power enter into the derived units of that physical quantity is called as dimensional formula of that physical quantity ਜਿਹੜੀ ਹੈ। For example area ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ m ਦੀ 0 ਸੀ, l ਦੀਆਂ 2 ਸੀ ਤੇ t ਦੀ ਵੀ 0 ਸੀ। that of velocity ਕੀ ਸੀ, m ਦੀ 0 l t -1। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, f ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਫੋਰਸ p ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f ਬਾਈ a। ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर लिख के दे सकते हो, यू शुड ट्राई करो अपनी नोटबुक ते रफ पेज ते लिख के डायमेंशनल फार्मूला कढ़ के लिख के मैनू फोटो सेंड करनी। ठीक है, मैनू पता लग जूगा कि प्रॉब्लम तुहानू समझ आ गई है, उहदे ते तुसी काम कीता कि नहीं कीता। अगेन फोर्स दा ते प्रैशर दा, फोर्स अपने कोल की हुंदा, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देना थोड़ा। एक्सलरेशन की हुंदी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम v बाई टी। ठीक है, सो फार्मूला बना लोगे, उहदे तुसी डायमेंशन करनी। प्रैशर की हुंदा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बहुत सिंपल दिता तुहानू। इन्हां दे दोनां दे डायमेंशनल फार्मूले कढ के मैनू सेंड करने। डन। नैक्सट चलिए आपां। एक मेरा माउस नहीं चलता, चलो नैक्सट आ गई डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन लिखनी आ गई। ये जिदा आप इंग्लिश करते सी ना, तो इंग्लिश च ग्रामर होंदी सी, स्ट्रक्चर बनता सी। थोड़ा जिहा लैक्चर उदा ही है। आ वाली स्लाइड तो बाद अपना असली काम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला स्टार्ट होने वाला। ठीक है, सो डायमेंशनल इक्वेशन की होंदी है, सानू डायमेंशन पता लग गई, सानू डायमेंशनल फार्मूला लिखना आ गया। थर्ड है डायमेंशनल इक्वेशन। यार जदों क्वांटिटी एक पासे लिखती, एक पासे डायमेंशनल फार्मूला लिखता, तो वो जी इक्वेशन बनूगी उन्होंने आप डायमेंशनल इक्वेशन कह देंगे। मैथमैटिक्स के इक्वेशन लिखते हैं उन्होंने मैथमैटिकल इक्वेशन कहने हैं। ठीक है, जो डायमेंशनल फार्मूले लिखांगे डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएंगे। सिंपल सिंपल। ठीक है, सो द इक्वेशन obtained by equating the physical quantity with its डायमेंशनल फार्मूला, एक पासे फिजिकल क्वांटिटी रख देनी है, दूजे पासे उनका डायमेंशनल फार्मूला रख देना है, तो उस इक्वेशन को असीं की बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। अगेन वो एरिया वेलोसिटी चलन गया, ओ इतने वेलोसिटी लिखनी भुल गया मैं। चलो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया की है, एरिया इज इक्वल टू m0 l2 t0। लिखता, फर्क देखो हुण पिछली स्लाइड नाल। पिछली साइड दे विच मैं आ लिखिया सी, एरिया इज करके लिखिया सी ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज। हुण मैं की कीता, आ चीज़ इदां लिखती, पर एरिया नूं मैं किदां लिखिया, एरिया नूं भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स दे विच पा दिता। जदों एरिया नूं भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स पाता, इट मीनस एरिया इज द क्वांटिटी एंड व्हाट वी आर राइटिंग हियर, वी आर राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला हियर, जहाँ डायमेंशंस ऑफ एरिया। ठीक है, इदा ही डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आप प्लीज़ एडिट कर लियो। इत्थे अपने कोल की कहंदे हुंदे आ, वेलोसिटी आऊगी। देखा मैं कुछ ऐड हुंदा नो, सो इत्थे मेरे कोल भी होनी सी। ठीक है, सो गलती दे नाल मैं सॉरी, सो गलती नाल आपां वेलोसिटी की थां ते एरिया लिख दिता सी मैं। सो इत्थे आपां वेलोसिटी दी जिहड़ी डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू m0 l t -1। आ देखो पीछे सी। ठीक है, सो इहदे विच की कीता, मैं वेलोसिटी लिख के उहनूं स्क्वायर ब्रैकेट च पा दिता। सो ये एक तरीका आ डायमेंशन
डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। अगर तुसी एग्जाम दे विच आ लिखदे हो एरिया इज इक्वल टू आ इक्वेशन लिखती तां कांटा वज जाना जे तुसी इहदे ते स्क्वायर ब्रैकेट ना पाईयां होईयां। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पाई होगी तां टिक लग जूगी, अदरवाइज इट विल बी क्रॉस्ड, सो मार्क्स कट्टे जाएंगे। ख्याल रखना इस चीज़ का, ठीक है। हुण आ जाओ थोड़ा जिहा इहनूं मैं मिनीमाइज ही करदा एक बार। सो डायमेंशनल फार्मूला ते बेस्ड जां डायमेंशनल एनालिसिस ते बेस्ड 4 तरह दीयां क्वांटिटीज़ होंदियां फिजिकल अपने कोल। देयर आर 4 टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, नंबर 1, ठीक है। दीज आर द क्वांटिटीज whose values are constant. These are quantities whose values are constant and possess dimensions. ਜਦੋਂ कोई क्वांटिटी, ठीक है, कांस्टेंट है तो डायमेंशन हैगियां होंदियां तां उहनूं असीं कह दिंदे आ डायमेंशनल कांस्टेंट। क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स कि क्वांटिटी वेरी नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ लाइट आ दित्ती हुई है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनीवर्सल गैस कांस्टेंट। पहली दी गल ही कर लैंदे आ। वेलोसिटी ऑफ लाइट जिहड़ी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की हुंदी है अपने कोल c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड, है ना, जां कह लो पंजाबी च 3 लाख किलोमीटर पर सैकेंड, है ना, एक सेकेंड च। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो कांस्टेंट वैल्यू आ, बट इट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी दी अपने कोल डायमेंशनस की ने m0 L t-1, ठीक है। आप हुणे कड्डियां पिछे एग्जाम्पल की है। सो इट हैज़ द डायमेंशन बट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। सो अपने कोल ये हो गया। यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पढ़ांगे जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ांगे, ठीक है। यूनीवर्सल गैस कांस्टेंट तुसीं हुणे पढ़ लोगे स्टेट्स ऑफ मैटर दे विच PV इज इक्वल टू nRT हुंदा। वो जिहड़ा R है उहनूं यूनीवर्सल गैस कांस्टेंट कहने आपां, ठीक है। सो अगे आ गया अपने कोल डायमेंशनल वेरीएबल्स। अगेन डायमेंशनल मीन क्वांटिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ कांस्टेंट नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ वेरी करदियां आ, प्लस उन्हां दे डायमेंशनल फार्मूले होंदे आ, उन्हां दियां डायमेंशनस होंदियां। हर एक चीज़ जिद्दां दी अपने कोल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी, ठीक है। हुण देखो एरिया वेरी कर सकता है, डायमेंशनां तो हैगियां ही आ। वॉल्यूम वेरी कर सकता है, डायमेंशन है। डेंसिटी भी वेरी करती है हर एक चीज़ की। सो वेलोसिटी वेरी कर ही सकती है। हाँ, उपरले डायमेंशनल कांस्टेंट आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी भी लिख सकते सी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी वही होंगी है जिहदी जी वैल्यू होंगी। सो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, थर्ड क्वांटिटी आप पढ़ लिया ना दो, डायमेंशनल कांस्टेंट ते डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? यस और नो दस दिओ, ठीक है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज व्हाट इज, हुण इत्थे देखो अपने को लिखा होया लेस। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब आही फार्मूला, आही चीज़ इदा ही है, कांस्टेंट वैल्यूज है क्वांटिटीज़ दियां बट डायमेंशन नहीं हैगी। हुण कहोगे वो किदां, पाई दी वैल्यू ले लो। पाई आपां नूं सारिआं नूं पता, पाई दी वैल्यू की हुंदी है 3.14, ठीक है। जां आपां उहनूं कह दिंदे 22/7 हो गया, 22/7। सो पाई इज मैथमेटिकल कांस्टेंट, प्योरली मैथमेटिकल नंबर। ਜਾਂ जो भी आप नंबर भरते हैं, रियल नंबर, इंटीग्रल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, जो भी है वो सारे अपने कोल की है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है। सो दीज आर द क्वांटिटीज whose values are constant but these do not possess dimensions. For example, pure numbers 1 2 3 4, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स पाई एंड ई, ठीक है। इदां ही अपने कोल डायमेंशनलेस वेरीएबल्स। ए अगेन इत्थे लेस आ, मतलब वैल्यूज वेरीएबल ने बट डायमेंशनस नहीं हैगियां, ठीक है। रेशो की कोई डायमेंशन नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल रेशो का होंगी है, सेम क्वांटिटीज़ की होंगी है ना, वेरीएबल आ गई। एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन, एंगल की होंदा आर्क बाय रेडियस। आर्क की है अगेन लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, इदां ही कटते होंदे सीगे। सो डायमेंशन की रह गई, लेंथ नाल लेंथ कट्टी गई।
सो साडे कोल की है एंगल डायमेंशनलैस हो गया। स्ट्रेन हुंदी है एक चीज़ जो आप चीज़ नूं खिच्चदे आ ना, खिच्चण तो बाद उहदे आकार च जिहड़ा चेंज हो जाता, सो वो चेंज हो जाता, वो स्ट्रैस लगन तो बाद जिहड़ा अपने कोल साइज़ वधदा या घटदा, जिहड़ा परमानेंट चेंज हुंदा उस चीज़ नूं असीं स्ट्रेन कहने। सो स्ट्रेन का मतलब की होंदा, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। जे लेंथ अपने कोल धागा खिंचिया कोई तार खिंची है लोहे की, सो एल नाल एल कट्टी जानी है। स्पैसिफिक ग्रैविटी होंदी है, ठीक है, ये मास का चक्कर होंदा है अपने कोल किसी क्वांटिटी कंसनट्रेशन कितनी है किसी कितनी है। सो नॉर्मली जिहड़ियां भी चीज़ां च रेशो आ जाती है, ठीक है, सेम डायमेंशन की, वो अपने कोल सारियां डायमेंशनलैस वेरीएबल्स हो जाती, ठीक है। वेरीएबल्स है पर डायमेंशन नहीं हैगी कोई। सो 4 तरह दी क्वांटिटीज़ ने, ये आपां नूं हेल्प करनगियां अगे इंदियां प्रॉब्लम्स दे विच, इस करके पता होना चाहिए। डायमेंशनलैस डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट्स एंड डायमेंशनलैस वेरिएबल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपने कोल एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। सो पानी पी के आना तो इस स्लाइड नू स्टॉप करके पी आयो, पॉज करके वीडियो नू पानी पी के बह जाओ, क्योंकि हुण जिहड़ियां आह 4 चीज़ां करनियां इन्हां च आपां ब्रेक नहीं लाउणी, ठीक है। इन्हां 4 चीज़ां च असीं ब्रेक नहीं लाउणी। कोई पिछे कोई डाउट होवे तां मैनूं पुछ लेना आ, अदरवाइज आपां इहनूं कंप्लीट करना हो, ठीक है। सो ये जिहड़े 4 आ डायमेंशनल इक्वेशनस दे 4 अपने कोल एप्लीकेशंस ने, यूजेस ने, इन्हां दे बेस ते एक एक न्यूमेरिकल मैं इह सॉल्व कीता है वीडियो च। तुसीं अपनी बुक ते, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी न्यूमेरिकल्स भी अनसॉल्व भी ट्राई भी करने आ। जिहड़ी चीज़ प्रॉब्लम आवे मैनू भेजनी है, आई विल सॉल्व दैम, ठीक है। मैं उन सारिया चीज़ों सॉल्व करके तुहानूं दसूँगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ने कंपीटिशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल, ठीक है। +1 2 तुसीं कर लेनी है, +1 2 करके कुछ अचीव भी करना है, उनके लिए इन्हां प्रॉब्लम्स ते काम करना जरूरी है, ठीक है। घरे बैठते हैं सुस्ती चढ़ती है, बट कम लगे रहो, ठीक है, ढिले ना पाओ, ठीक है। सो आपां नैक्सट वीडियो च स्टार्ट करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, ओके।